لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في كلامه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدا صلى الله عليه بها عشرا. قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردانشین اسلامی ماں اور بہنوں، تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہمارا اکیلا خالق ہے۔ اس اللہ کو چھوڑ کر ہرگز کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ وہی اکیلا سچا معبود ہے۔ تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ بعدہ درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے تمام نبیوں پر، بالخصوص لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو میرے ماں باپ قربان ہو، امام کائنات سرور کونین، خاتم النبیین، افضل البشر، بہتر و برتر شافی مصر و ساقی کوثر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا و حبیبنا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ حاضرین جمعہ، جو ٹاپک، جو عنوان آپ کے سامنے رکھا گیا، جمعہ کے فضائل، احکام اور مسائل۔ اللہ رب العالمین ہمارا رب ہے، وہ جسے چاہتا ہے فضیلتوں سے ہمکنار کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے عام کر دیتا ہے۔ اس کی بادشاہت ہے، وہ جس کو چاہے اپنا پسندیدہ بنا لے، جس کو چاہے اپنے قریب کر لے۔ رب العالمین نے دنیا میں لاکھوں انبیاء بھیجے، سارے انبیاء کی اپنی فضیلت، اپنی جگہ، لیکن سارے انبیاء میں جو مقام اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا وہ کسی اور نبی کو نہیں دیا۔ سارے نبیوں میں سب سے افضل میرے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین نے بے شمار فرشتے بنائے، ان تمام فرشتوں میں جو فضیلت اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو دی کسی اور فرشتے کو نہیں دی۔ اللہ رب العالمین نے آسمان سے بے شمار کتابیں اور صحیفے نازل کیے، مگر جو فضیلت اللہ نے قرآن مجید جیسی کتاب کو دی وہ فضیلت اللہ نے کسی اور کتاب کو نہیں دی۔ اللہ رب العالمین نے سال کے 12 مہینے بنائے، 12 مہینوں میں رمضان کے مہینے کو جو اللہ نے فضیلت دی وہ کسی اور مہینے کو نہیں دی۔ بالکل اسی طرح اللہ رب العالمین نے ہفتے میں 7 دن بنائے، اور ان 7 دنوں میں جو عظمت اور جو فضیلت اللہ نے جمعہ کے دن کو دی ہے وہ کسی اور دن کو نہیں دی ہے۔ یہ جمعہ کا دن مسلمانوں کی اجتماعیت کا دن ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب سارے مسلمان اللہ کے گھر میں اکٹھا جمع ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے جمعہ کے دن مسلمانوں کی اجتماعیت یقیناً یہ مومنوں کے لیے خوشی اور عید کا دن ہے، اسے عید المومنین کہا گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، سب سے بہترین دن جس میں سورج نمودار ہوتا ہے،
سب سے افضل دن جس میں سورج نکلتا ہے یوم الجمعہ، وہ جمعہ کا دن ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے۔ وخلق اللہ آدم فیہ، جمعہ کا دن اس لیے افضل دن ہے کیونکہ اسی دن انسانیت کے باپ ابو البشر آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ یہی وہ دن ہے جس دن سیدنا آدم کو جنت میں ڈالا گیا تھا۔ یہی وہ دن ہے تقوم الساعہ، جب قیامت آئے گی۔ پیارے نبی نے جمعہ کی عظمت بیان کرتے ہوئے کہا جمعہ کے دن اللہ نے آدم کو پیدا کیا، جمعہ کے دن اللہ نے آدم کو جنت میں داخل کیا، جمعہ کے دن اللہ رب العالمین قیامت کو لائے گا، آخرت کے دن کو لائے گا، اور یہی وہ دن ہے جس دن مجھ کو اور آپ کو اور سارے مومنوں کو اپنے نبی پر کثرت سے درود بھیجنے کا حکم دیا گیا۔ پیارے نبی فرماتے فَأَكْثِرُوا عَلِيَّ مِنَ الصَّلَاةِ يَوْمِ الْجُمْعَةِ، کثرت سے تم مجھ پر جمعہ کے دن درود بھیجا کرو، کیونکہ میں اور آپ اپنے نبی سے اپنی جانوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے نزدیک ان کی جانوں سے زیادہ عزیز ہے۔ ہمیں اپنے نبی سے محبت کا ثبوت پیش کرنا ہے، اور محبت کی ایک بہت بڑی علامت یہ ہے کہ امتی اپنے نبی پر درود بھیجتا ہے۔ اور جمعہ کا دن اللہ کے نبی فرماتے کثرت سے تم مجھ کو جمعہ کے دن درود بھیجو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیز نوجوان دوستوں، اللہ کے نبی فرماتے جو بندہ اللہ کے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیش کرتے ہوئے جمعہ کے دن درود بھیجتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے من صلی علیہ صلاۃ واحدا، جو بندہ ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ رب العالمین اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ اللہ کی رحمت چاہتے ہو، اللہ کی محبت چاہتے ہو تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعہ کے دن کثرت سے درود بھیجا کرو۔ عزیز دوستوں، جمعہ کا دن اتنی عظمتوں والا دن ہے، اتنی بلندیوں والا دن ہے۔ اس دن کی عظمت بیان کرتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جمعہ کی عظمت، اللہ کے نبی فرماتے من توضع فاحسن الوضوء، من توضع فاحسن الوضوء ثم اتى الجمعة فاستمع فانصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو شخص جمعہ کے دن وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے، وضو کرنے کے بعد پھر وہ اللہ کے لیے جمعہ کے لیے مسجد کو آئے، فاستمع، غور سے خطبہ سنے، وانصت، اور خاموشی اختیار کرے، غفر له بینہ ما بین الجمعۃ الاخرى، تو اللہ رب العالمین اس کے ایک جمعہ سے لے کے اگلے جمعہ تک کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ یہ جمعہ کی شان، یہ جمعہ کا مقام، یہ جمعہ کی فضیلت ہے دوستوں، کہ اگر جو بندہ اچھی طرح وضو کر کے اللہ کے لیے جمعہ کے لیے گھر آتا ہے، اللہ کے خاموشی کے ساتھ خطبہ سنتا ہے، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے اس کے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، ہم کو دنیا میں بھیجا گیا اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے۔ ایک ہے حقوق اللہ، اللہ تعالیٰ کے حقوق، اور ایک ہے بندوں کے حقوق جنہیں حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ جمعہ کا تعلق دین سے ہے، اور دین کے کچھ حقوق ہے جو مجھ کو اور آپ کو عمل کرنا ہے۔ جمعہ کا حق ہے کہ میں اس کو ادا کریں، آپ اس کو ادا کریں۔ جمعہ کے بہت سارے حقوق ہیں۔ سب سے پہلا حق جو جمعہ کا یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جمعہ کی تعلیمات دی۔ جمعہ کا سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ بندہ جمعہ کے دن غسل کرے، پانی نہائے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غسل یوم الجمعہ واجب علی کل محتلم، ہر بالغ پر جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے۔ اگر کوئی مجبوری ہے تو اس کے لیے معافی تلافی کا راستہ موجود ہے، لیکن بغیر عذر کے بنا وجہ کے اگر کوئی پانی نہیں نہائے گا تو وہ مجرم ہے، کیونکہ جمعہ کا دن عید کا دن ہے اور بندوں کو عید کے دن غسل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پیارے نبی فرماتے جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے۔ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے بڑے بڑے صحابہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی کبار جلیل القدر صحابہ کا یہ موقف ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا ہر مسلمان کے لیے واجب ہے اگر وہ بالغ ہے۔ تو ہر بالغ کے لیے جمعہ کا پہلا حق یہ ہے کہ وہ غسل کریں، پاک کی صفائی کا خیال رکھے۔ دوسری اہم چیز
जुमा के दिन जो सबसे बेहतरीन लिबास इंसान के पास मौजूद है, अच्छे लिबास उसके पास मौजूद है, साफ सुथरा लिबास पहनकर अल्लाह के घर में दाखिल हो, पानी नहाए और अच्छा लिबास पहने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक जोड़ा कपड़ा था जो बहुत खूबसूरत था, बहुत साफ था। अल्लाह के नबी उसको दो मौकों पर पहना करते थे, एक आप जुमा के मौके पर पहना करते थे और दूसरा कहीं बाहर से कोई वफूद आपसे मिलने आते, कोई सरदारान से आपकी मुलाकात होती तो आप उस वक्त वो कपड़ा पहना करते थे। तो जुमा के दिन इंसान को अच्छे कपड़े पहनने चाहिए और शरीयत मुतहरा की निगाह में सबसे बेहतरीन लिबास वो है जो सफेद रंग का हो और पाकीज़ा हो। प्यारे नबी ने फरमाया अलबसुल बयाद फइन्नहा अत्हरु अत्यम, तुम सफेद लिबास इख्तियार करो क्योंकि ये पाकीज़ा है और बेहतरीन लिबास है, अल्लाह ताला को पसंदीदा है। और अल्लाह के नबी फरमाते वकफ़िनु मौताकुम, और अपने मरने वाले भाइयों को इसका कफन किया करो, सफेद कपड़ों में कफनाया करो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन को सफेद कपड़ों से मोहब्बत है, वो पाकीज़ा और अच्छा लिबास है। लिहाजा इंसान को चाहिए कि वो जुमा के दिन गुस्ल करें और अच्छे कपड़े पहनने का एहतमाम करे। तीसरी चीज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पसंदीदा चीज है, प्यारे नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो तोहफे में चीजें अता की उनमें से एक खुशबू है, अतर का इस्तेमाल करना। जुमा के दिन बंदा अतर का इस्तेमाल करे, एक तो इससे खुशबू आएगी और दूसरा प्यारे नबी की सुन्नत पर अमल होगा, लिहाजा खुशबू का हम एहतमाम करे। इसी तरह जुमा के मसलों में एक बहुत बड़ा मसला यह है कि बंदा वक्त का खास ख्याल रखे, खास ख्याल रखे। देखिए शरीयत इस्लामिया में जितनी चीजें है ना, सारी चीजें वक्त पर है। अल्लाह ने वक्त की अहमियत को समझाने के लिए वक्त की कसम खाई। अल्लाह ने कहा वल अस्र, कसम है जमाने की, कसम है वक्त की। अल्लाह ने कसम खाई वक्त की, ये बताने के लिए कि अल्लाह के नजदीक वक्त की अहमियत है। बशीर बिन जुमा रहमहुल्लाह लिखते हैं कि अल्लाह के नजदीक वक्त की इतनी अहमियत है कि वक्त को सोना कहना, वक्त को सोना कहना भी वक्त की नाकदरी। अल्लाह अकबर, कितनी कद्र है अल्लाह के नज़ीब वक्त। अल्लाह ने कहा इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबन मौक़ूता, हमने हर बंदे पर, हर मोमिन पर वक्त मुकर्ररा पर इबादत को फर्ज किया। जिसका जो वक्त है उसी वक्त में वो इबादत करेगा तो उसकी इबादत अल्लाह के नज़दीक काबिल कबूल होगी, मुकम्मल उसको सवाब होगा। वक्त के बाहर अगर कोई काम करेगा नेकियां तो मिल जाएगी, लेकिन जो अजीम सवाब अल्लाह ने रखा है वो सवाब से महरूम हो जाएगा। जुमा के मामले में वक्त की नाकदरी हमारे माशरे का एक नासूर जख्म बनता जा रहा है, नासूर जख्म बनता जा रहा है। कई मसाजिद का यही हाल है, लोग जुमा की अज़ान हो जाती है, खतीब नंबर पर खड़ा हो जाता है, दौरान खुतबा लोग मस्जिद में आना शुरू करते हैं। ये इंतहाई गफलत और बदतरीन बात है कि बंदा खतीब के मंबर पे चढ़ने के बाद मस्जिद में आए। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो। अल्लाह अपने ईमान वाले बंदों से मुखातब होकर कहता है इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा, जब जुमा के दिन नमाज के लिए अज़ान दे दी जाए, जुमा के दिन जुमा की अज़ान दे दी जाए, मुअज्जिन निदा लगाए जुमा के लिए, फसअउ इला ज़िक्रिल्लाह, तो तुम अल्लाह के लिए दौड़ पड़ो, अल्लाह के जिक्र के लिए मस्जिदों को आओ। जैसे ही तुम अज़ान को सुनो, सारी चीजों को छोड़कर, बीवी बच्चों की मोहब्बत को छोड़कर, सोशल मीडिया को छोड़कर, अपने कारोबार को छोड़कर, अपने बिजनेस को छोड़कर, सारी चीजों को छोड़कर फसअउ इला ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो। वज़रुल बैई, और तिजारत को, खरीदो फरोख्त को बंद कर दो, तिजारत करना बंद कर दो। ज़ालिकुम खैरुल लकुम, ये तुम्हारे हक में बहुत बेहतर है, इन कुंतुम तअलमून, अगर तुम इस बारे में जानते हो। अल्लाह ने कहा अगर तुम्हें इल्म हो जाए जुमा के दिन का, जुमा की अजमत का, जुमा के सवाब का, अगर तुम जानने वाले हो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम जुमा के लिए वक्त से पहले आओ, वक्त से पहले मस्जिद में आओ। और आज मामला बिल्कुल इसके बरक्स नजर आता है। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु इस आयत की तफसीर में बयान करते हैं जुमा की अज़ान होने के बाद भी अगर कोई तिजारत में मसरूफ रहता है, खरीदो फरोख्त करता है, तो उसकी तिजारत से कमाई जाने वाली कमाई अल्लाह के नजदीक हराम है, हराम है। अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ने का हुक्म दिया गया। अज़ान होने के बाद भी अगर आप अपने कारोबार से फुर्सत नहीं मिलती है, हमको तिजारत में लगे हैं, बिजनेस चल रहा है, पैसे कमा रहे हैं और दौरान खुतबा मस्जिद आ रहे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐसे शख्स के अमल को अल्लाह बर्बाद कर देगा, उसके लिए कोई सवाब नहीं। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं वो तिजारत की कमाई उसके लिए हराम है, सवाब से महरूमी का जरिया है। जुमा के दिन, जुमा में वक्त जो जुमा का है मस्जिद में आने का, वो खतीब के मिंबर पर चढ़ने से पहले
जितने भी लोग हैं, सारे मर्द ख्वातीन, खतीब के मेंबर पर खड़े होने से पहले जब अज़ान शुरू हो जाए उस वक्त मस्जिद में दाखिल होना जरूरी है। आपको वो हदीस याद होगी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के मुकर्रर फरिश्ते मस्जिदों के दरवाजे के बाहर खड़े होते हैं और हर आने वाले मुसल्ली का नाम अपने रजिस्टरों में दर्ज करते हैं और वो रजिस्टर अल्लाह के पास पहुंचाए जाते हैं कि अल्लाह पाला बंदे ने वक्त मुकर्ररा पर जुमा के दिन तेरी इबादत की थी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब खतीब मेंबर पर चढ़ जाता है, मुअज्जिन अज़ान की निदा लगाता है, तो फरिश्ते अपने दफ्तरों को बंद कर देते हैं और मस्जिद में दाखिल होते हैं और फरिश्ते भी खुतबा सुनने के लिए बैठ जाते हैं। अल्लाह के मलाइका अल्लाह की मजलिसों में, दीन की मजलिसों में खुतबा सुनने के लिए बैठ जाते हैं और उन लोगों का नाम उन रजिस्टर में नहीं लिखा जाता जो अज़ान के बाद मस्जिद में दाखिल होते हैं। वो मुकम्मल जुमा के सवाब से महरूम है। उनको नमाज का सवाब मिलेगा, मस्जिद में आने का सवाब मिलेगा, लेकिन जो जुमा की खुसूसियत का जो सवाब है उस सवाब से वो महरूम रह जाएंगे वक्त की नाकदरी करने की वजह से। आप जुमा की तैयारी एक दिन पहले से करें, चारशंबे से जुमेरात से आपको ये तैयारी करनी चाहिए कि भाई अजीम दिन आने वाला है, मुकर्रब दिन अल्लाह का आने वाला है, मैं इसके लिए तैयार हूँ, अपने कपड़ों को इस्त्री करूँ, अपने कपड़ों को साफ करूँ, अपने बदन को साफ करूँ। जुमा के लिए बिल्कुल वक्त से पहले तैयार होना ये अच्छे मौमिन होने की अलामत है कि बंदा जुमा के दिन की अजमत और उसकी फजीलतों को हासिल करे और मुकम्मल सवाब अल्लाह के यहाँ पाए। तो जो शख्स खतीब के मेंबर पे चढ़ने के बाद मस्जिद में आता है, गोया के फरिश्तों उसका नाम अपने रजिस्टर में दाखिल नहीं करते और अल्लाह के यहाँ वो बंदा सवाब से महरूम हो जाता है। जुमा के मसलों में एक अहम मसला ये है कि बहुत सारे लोग जुमा के मौके पर मस्जिद में दाखिल होते हैं मगर बगैर नमाज पढ़े बैठ जाते हैं, बगैर नमाज पढ़े बैठ जाते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा दखल अहदुकुमुल मस्जिद फला यजलिसु हत्ता युसल्ली रकअतैन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब भी कोई बंदा मस्जिद में दाखिल हो तो उस वक्त तक ना बैठे जब तक कि वो 2 रकात नमाज ना पढ़े। जब तक आप 2 रकात नमाज नहीं पढ़ते आपको मस्जिद में बैठने की इजाजत नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा खुतबा दे रहे थे, एक सहाबी सुलेख गतफानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मस्जिद में दाखिल हुए, बैठ गए। नबी ने खुतबे के दौरान सहाबी को इशारा करके कहा ऐ सुलेख तुमने नमाज नहीं पढ़ी, तुम 2 रकात नमाज पढ़ो फिर बैठो। किसी को बैठने की इजाजत नहीं है मस्जिद में उस वक्त तक जब तक कि वो 2 रकात नमाज ना पढ़े। और यहाँ एक मसला बताना बहुत जरूरी समझता हूँ, जब जुमा के दिन मुअज्जिन साहब अजान दे रहे होते हैं, कई लोग इंतजार में खड़े होते हैं कि अजान खत्म हो जाएगी तो नमाज पढ़ूंगा। बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। अजान अपनी तरफ होते रहेगी, आपको नमाज पढ़ने का हुक्म है, आप अजान की खातिर नमाज को नहीं रोक सकते। वजह यह है कि खुतबा सुनना वाजिब है, जरूरी है, और अजान का जवाब देना बिलमुकाबिल खुतबा सुनने के गैर वाजिब है। लिहाजा बंदों को चाहिए जब वो मस्जिद में दाखिल हो और मुअज्जिन अजान दे रहा हो तब भी आप नमाज पढ़े, रुके नहीं नमाज के लिए, अजान के लिए। अजान होती रहेगी, आप अपनी नमाज पढ़ते रहेंगे क्योंकि आपका खुतबा सुनना वाजिब है। बहरहाल बात यह है कि जब भी कोई बंदा मस्जिद में दाखिल हो जाए तो उस वक्त तक ना बैठे जब तक कि वो 2 रकात नमाज ना पढ़ ले। अब मामला यह है जब बंदे मस्जिद में दाखिल होते हैं तो 2 हरकतें जो बहुत गैर मुनासिब है, जो बिल्कुल बहुत बड़ी गलती है जुमा के दौरान, जुमा के दिन मस्जिद में, अल्लाह के घर में, ये बहुत बड़ी गलती है कि बंदा आए और फला आदमी को फला जगह से उठा दे और उस जगह पर अपनी जगह बना ले। बहुत सारे लोग होते हैं मस्जिद में आते हैं, वो समझते कि वो उनकी परमानेंट जगह है, ये अल्लाह का घर है, ये किसी की परमानेंट जगह नहीं है, ये किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। जो जिसको जहां जैसे जगह मिलेगी वो वहां बैठेगा, उसको बिल्कुल हक है। ये अल्लाह का घर है, किसी का घर नहीं है। मसाजिद अल्लाह के घर है, वो अन्नल मसाजिद लिल्लाह, मसाजिद अल्लाह के लिए। बंदा मस्जिद में दाखिल होता है, उसको जहां जगह मिली वो बैठ गया। अब ये है कि दूसरा बंदा आए, उस बंदे को वहां से उठाए और उस जगह बैठ जाए जहां उसकी पहले से जगह थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त मना फरमाया है। इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं नहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन युकीम अर्रजुल अखाहु मिन मक़अदिही व यजलिस फीही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बंदा मस्जिद में दाखिल हो और अपने किसी मुसलमान भाई को उसकी जगह से उठाए और खुद वो जगह बैठ जाए तो ये अल्लाह के नज़दीक नापसंदीदा अमल है। अल्लाह इस बात को पसंद नहीं करता। आपको जो जहां जगह मिलेगी आप वहां बैठिए, चाहे आप मस्जिद के जिम्मेदार हो, सदर हो, कोई भी हो, ये अल्लाह का घर है, सब अल्लाह के नज़दीक बराबर है। लिहाजा जिसको जहां जैसी जगह मिलेगी वो वैसे ही बैठेगा। किसी को उठाकर बिठाना ये अल्लाह के नज़दीक मकरूह और नाजायज अमल है। इसी तरह कुछ लोग ऐसे हैं जो जुमा के दिन आते हैं तो पहली सफ में बैठने की ख्वाहिश होती है, घर से आखिर में निकलते हैं
لیکن مسجد میں پہلی صف میں بیٹھنے کی خواہش ہوتی ہے. اللہ کے کچھ پیارے بندے وہ ہوتے ہیں جو جمعہ کی تڑپ میں 11 بجے سے 10:30 بجے سے اللہ کے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں. اللہ ان کو جزائے خیر دے. اگر آپ کو پہلی صف میں بیٹھنے کی خواہش ہے تو پہلے گھر سے نکلیے. آخر میں گھر سے نکل کر پہلی صف میں بیٹھنے کی کوشش کرنا یہ جرم ہے. کچھ لوگ ہیں جمعہ میں داخل ہوتے ہیں, لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتے ہوئے آگے آنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے. عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے, میں جمعہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ میں موجود تھا. اللہ کے نبی خطبہ دے رہے تھے, میں ممبر کے قریب بیٹھا تھا. اللہ کے نبی خطبہ دے رہے ہیں, ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا, لوگوں کی گردنوں کو ہٹاتے ہوئے, لوگوں کو تکلیف دیتے ہوئے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر بیٹھ گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے لال ہوا اور آپ نے کہا کہ بیٹھ جاؤ, تم نے تکلیف دی ہے لوگوں کو اور تم نے تاخیر کر دی. جمعہ میں لوگوں کو آپ نے تکلیف دی اور آپ نے آنے میں تاخیر کر دی. نبی غصے میں آ گئے. آپ مسجد میں داخل ہوئے, جہاں کونے میں جیسے آپ کو جگہ ملے آپ بیٹھ جائیں گے. لوگوں کو تکلیف دیتے ہوئے آگے آنا یہ خبیث عمل ہے, اور اس عمل سے یقیناً خطیب کو اور لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے. اللہ کے نبی نے کہا تم بیٹھ جاؤ, تم نے لوگوں کو تکلیف دی ہے اور تم نے تاخیر سے کام لیا. اب جب لوگ مسجد میں داخل ہوتے ہیں, بیٹھنا, اگر کسی بڑے آدمی کے گھر چلے جائیں ہمارے بیٹھنے کا ڈھنگ بدل جاتا ہے. ہم اپنے گھر میں بیٹھتے تو جیسے چاہے بیٹھے, اپنی مرضی, اپنا گھر ہے. لیکن اگر کوئی کسی کے گھر میں داخل ہوتا ہے, کسی بڑے آدمی کے گھر داخل ہوتا ہے, تو اس کے بیٹھنے کا لہجہ بدل جاتا ہے. یہ کائنات کے رب کا گھر ہے, یہ کائنات کے رب کا گھر ہے, اور اس کے گھر میں جب بیٹھو تو سلیقے سے بیٹھو, ادب سے بیٹھو. کئی نوجوان ایسے ہوتے ہیں, جمعہ ہو یا عام ٹائم ہو, وہ کبھی درس چل رہا ہے, خطبہ چل رہا ہے, ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں. بالکل جائز نہیں. آپ اللہ کا کلام سن رہے ہو, دین کی باتیں سن رہے ہو. ہاں اللہ یہ کہ آپ کی کوئی مجبوری ہے, آپ پرابلم میں ہیں, آپ معذور ہیں, آپ بالکل کرسی پر بیٹھ سکتے ہیں, ٹیکا لے سکتے ہیں. لیکن بغیر کسی کے, نوجوانوں کو ہم نے دیکھا مسجد میں آتے کونا پکڑ لیتے ہیں اور دیوار پر ٹیک لگا بس. اور بسا اوقات اتنی غفلت, اللہ معاف کرے, ان کو نیند بھی لگ جاتی ہے, خطیب خطبہ دے رہا ہوتا ہے اور وہ سوتے ہیں. اللہ کی پناہ. یہ بدترین عمل ہے, یہ جرم ہے, ثواب سے محرومی کا ذریعہ ہے. جمعہ جیسی عظیم دن آپ اللہ کے گھر میں آئیں, یہ ہفتے کا ایک دن اللہ تمہیں پسند کرتا ہے کہ تمہیں دین کی کچھ باتیں پہنچائی جائے. ہمیں اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے گھر میں بیٹھو تو ادب کے ساتھ بیٹھو, ادب کے ساتھ. اور ادب کیسا ہوتا ہے ہم اچھی طرح جانتے ہیں. بہت سارے لوگ بہت سارے طریقوں سے بیٹھتے ہیں جو کہ بالکل غیر مناسب ہے. یہ اللہ کا گھر ہے, اللہ کا ادب ہونا چاہیے. ہمارے دلوں میں اللہ کا ادب ہے, ہم اللہ سے محبت کرنے والی جماعت ہیں, تو ہمیں اللہ کے سامنے ادب سے پیش آنا چاہیے اور ادب کا تقاضا ہمیں اپنانا چاہیے. اسی طرح جمعہ کے دن ابو ہریرہ جو راوی حدیث ہے, امیر المؤمنین فی الحدیث, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اذا قلت لصاحبک یوم الجمعہ انصت والامام یخطب فقد لغوت. کتنی بڑی بات ہے. جمعہ کے دن خطیب خطبہ دے رہا ہے, بہت اہم باتیں جمعہ میں بتائی جاتی ہے. یہ جمعہ کی برکت ہے کہ آج ہم توحید والے ہیں. اگر جمعہ جیسا دن نہ ہوتا تو ہم کتنی غفلت میں ہوتے ہیں. ایک مستشرق, ایک عیسائی بندے نے یہ بات کہی تھی, اگر مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنا ہے تو ان کو 4 چیزوں سے دور کر دو, وہ خود بخود دین سے دور ہو جائیں. ایک مستشرق, ایک غیر مسلم نے یہ بات کہی تھی کہ اگر مسلمانوں کو دین سے دور کرنا ہے تو 4 چیزوں سے دور کر دو. ان کے قرآن کو دنیا سے ختم کر دو, ان کے حج کا معاملہ ختم کر دو, کہ مسلمان جو ہر سال حج میں جمع ہوتے, حج کا سیمینار ہوتا ہے, حج کا معاملہ ختم کر دو. ان کے قرآن کو مٹا دو, ان کے علماء کو مٹا دو, اور جمعہ کا دن خطبے کا سسٹم ختم کر دو. یہ 4 چیزیں کر دو, مسلمان دین سے دور ہو جائیں. اور آج لوگ علماء سے دور ہیں, مسجدوں سے دور ہیں, جمعہ سے دور ہیں, اور یہی شاید وجہ ہے کہ وہ دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں. جمعہ کا دن اللہ تعالیٰ نے ایک نصیحت کا دن رکھا ہے کہ بندے ہر ہفتہ اللہ کے گھر میں جمع ہو کر دین کی کچھ باتیں سنیں. تو ادب کے جو ہے مسائل کو آپ سامنے رکھیں اور اللہ کے حضور ویسے ہی کام کریں جیسے اللہ اور اس کے رسول نے ہم کو حکم دیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے, پیارے نبی نے فرمایا, جمعہ کے دن جب خطیب خطبہ دے رہا ہو تو خاموشی کے ساتھ سنیں. خاموشی شرط اول ہے جمعہ میں. بندوں کو خاموش رہنے کا حکم دیا. بندہ کوئی کسی سے بات نہیں کر سکتا. جمعہ کے دن حرکت کرنا, بات کرنا تو بہت دور کی بات ہے, حرکت کرنے سے آپ نے منع فرمایا. حرکت. اور لوگ جمعہ میں فون چلا رہے ہیں, واٹس ایپ دیکھ رہے ہیں, کسی سے بات ہو رہی ہے, اشارے چل رہے ہیں, یہ حرام ہے, حرام ہے بالکل. ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اگر جمعہ میں 2 لوگ بات کر رہے ہیں, تیسرا آدمی ان سے کہتا ہے خاموش رہو, تو جو 2 لوگ بات کر رہے ہیں ان کا جمعہ تو برباد ہوا,
जिसने कहा खामोश रहो उसका भी जुमा बर्बाद हुआ। अल्लाह, आप ये भी नहीं कह सकते आगे वाले को खामोश रहो, आप कहेंगे खामोश रहो आपका जुमा बर्बाद हो जाएगा। आपने अच्छी नीयत की, आपकी बुरी नीयत नहीं थी, आपकी नीयत अच्छी थी, मगर आपके जबान से कहने की वजह से अल्लाह आपके अजर को महरूम कर देगा। इतनी बात अल्लाह के नबी फरमाते, जिसने जुमा में अपने किसी भाई से कहा खामोश रहो फकत लगोता, उसने क्या ही बेहुदा हरकत की। अल्लाह, ये बहुत बड़ी बात है कि जुमा के दिन मैं और आप किसी से बात करें। हाँ, इल्ला ये कि जुमा के दिन सिर्फ खतीब से बात करने की इजाजत है। अगर खतीब कोई जुमा में सवाल करता है तो आप खतीब से बात कर सकते हैं, खतीब के अलावा किसी से आपको बात करने की इजाजत नहीं दी गई। और एक बहुत बड़ी बात जुमा के मसलों, कुछ लोग जुमा में ताखिर से आते हैं और ये ताखिर से आना उनकी जिंदगी का मामूल बन चुका है। आप उनको कितना भी समझाएंगे वो नहीं समझेंगे, और आएंगे तो अपने वक्त पर आएंगे, और इतने वक्त पर आएंगे कि जमात खड़ी हो रही है उनको लगता है कि मैंने जुमा की नमाज पढ़ ली। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, खुतबा आपने नहीं सुना या खुतबे के दौरान आए या खुतबा खत्म होने के बाद आए, आपने नमाज पढ़ ली, आप समझते आप जुमा के मुसलमान हैं। नहीं, आप जुमा के भी मुसलमान नहीं है, आप सिर्फ नाम के मुसलमान। बहुत सारे लोग जुमा के दिन जुमा की नमाज में आते हैं, ये मसला बहुत बड़ी गलती जो सालों से लोग कर रहे हैं। जुमा के दिन 2 रकात इमाम नमाज पढ़ाता है, 2 रकातें आपने पढ़ी तो गोया कि आपने जुमा की नमाज पढ़ी। अगर आप मस्जिद में उस वक्त आए, 1 रकात हो चुकी थी, दूसरी रकात चल रही है, आप उस वक्त आए, आपने 1 रकात इमाम के साथ पढ़ी और 1 रकात आपकी छूट गई, आपने तनहा पढ़ी, तो फिर भी मुमकिन है, बात इब्ने क़य्यिम वगैरह कहते हैं कि आपकी नमाज से जुमा हो जाएगी, आपकी नमाज जुमा हो जाएगी। लेकिन अगर कोई जुमा के दिन उस वक्त मस्जिद में आता है जब 2 रकातें हो जाए, यानी इमाम दूसरी रकात के सजदे में हो या तहियात में बैठा हो, उस वक्त आप मस्जिद में आए और आपने दूसरी रकात के तहियात में नमाज पढ़ी और बैठ गए, तो उलमा कहते हैं कि इसके लिए जुमा का कोई सवाब नहीं। ऐसे बंदे को चाहिए वो ज़ोहर की 4 रकात नमाज पढ़े, जुमा का जो सवाब था वो चला गया, उसके हाथ से जुमा की 2 रकातों का वक्त निकल चुका है। अब अल्लाह के पास 2 रकात पढ़ना कोई माने नहीं रखता। ऐसे बंदे को चाहिए कि 4 रकात ज़ोहर की नमाज पढ़े। आप मस्जिद में उस वक्त आए कि जब इमाम दूसरी रकात के सजदे में हो या तहियात में हो, तो आपको वो 2 रकात नहीं पढ़ना है, आपको 4 रकात ज़ोहर पढ़ना है। आपने जुमा का जो अहमियत, जो वक्त था वो गवा दिया आपने। और हमने बहुत सारी खवातीन के बारे में ये सुना, वो घरों में जुमा अदा करती है तो भी जो जुमा पढ़ती है, बहुत बड़ी गलती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो खवातीन मस्जिद आना चाहती है उनको ना रोको। अगर मस्जिद में खवातीन आती है तो जुमा अदा करेगी, लेकिन अगर खवातीन घरों में नमाज अदा करती है, बात खवातीन जुमा के दिन बड़े एहतमाम के साथ घरों में नमाज पढ़ती है, और हमने सुना कि वो घर में जुमा की नमाज पढ़ती है 2 रकात, जो बिल्कुल दुरुस्त और जायज नहीं है। घर में अगर खवातीन जुमा के दिन नमाज पढ़ती है तो उन्हें 4 रकात ज़ोहर की नमाज पढ़ना है, जुमा की नमाज नहीं पढ़ सकती, क्योंकि जुमा की नमाज सिर्फ मस्जिदों में अदा होती है, घरों में जुमा नहीं हो सकता। तो जितनी खवातीन जिनका सालों से यह अमल रहा है बगैर इल्म की वजह से वो जुमा की नमाजें पढ़ती आ रही है, तो इसको अमल को रोक दें। ये प्यारे नबी की जो है अज़वाज मुत्तहरात या किसी भी सहाबियात का तरीका नहीं था। अगर खवातीन जुमा नमाज मस्जिद में पढ़ना चाहती है तो यकीनन वो अपने शौहरों की इजाजत के बाद मस्जिद आ सकती हैं, लेकिन अगर वो घरों में हैं तो उन्हें 4 रकात ज़ोहर की नमाज पढ़ने की हुक्म है, वो घर में जुमा नहीं पढ़ सकती। एक आखिरी बात, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा कि जब जुमा के दिन जुमा की अज़ान दे दी जाए तुम अल्लाह के जिक्र की तरफ आओ, ज़ालिकुम खैरुल लकुम, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। अगर तुम बेहतरी तलाश करना चाहते हो तो वक्त से पहले मस्जिद आओ। और जुमा के दिन अल्लाह ने बंदों के लिए एक इनाम रखा है, वो इनाम क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जुमा के दिन एक घड़ी ऐसी है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदों की मांगी हुई दुआ को जरूर कबूल करता। जुमा के दिन एक घड़ी है, एक वक्त है, बिल्कुल हल्का सा वक्त, बिल्कुल मुख्तसर सा वक्त अल्लाह ने जुमा में रखा। जब बंदा उसमें अल्लाह से मांगेगा अल्लाह उसकी दुआ को जरूर कबूल करेगा। उलमाए कराम ने इस घड़ी का नाम साअतुल इजाबा रखा। इसका मतलब ये वो घड़ी है जिसमें अल्लाह जरूर लोगों की दुआओं को कबूल करता है। इब्ने क़य्यिम रहमहुल्लाह ने कहा, और दीगर मुहद्दिसीन का इस सिलसिले में इख्तिलाफ है, लेकिन राजे बात ये है कि इब्ने क़य्यिम रहमहुल्लाह कहते हैं साअतुल इजाबा बाद सलातिल अस्र इलल मगरिब। वो घड़ी कौन सी है? अस्र की नमाज के बाद मगरिब से पहले का जो वक्त है वो साअतुल इजाबा, उलमाए किराम कहते हैं वो वक्त है जब अल्लाह लोगों की दुआओं को कबूल करता है। और मुहद्दिसीन के बारे में आता है कि अस्र की नमाज के बाद से लेकर मगरिब की अज़ान तक अक्सर हमारे असलाफ दुआओं में मशगूल रहते थे। अस्र की नमाज हो गई, अस्र की नमाज के बाद से लेकर मगरिब की अज़ान के करीब तक हमारे मुहद्दिसीन असलाफ
रब से दुआएं करते थे वो घड़ी पाने के लिए जिस घड़ी में अल्लाह बंदों की दुआओं को जरूर कबूल करता है। अगर आपकी भी कोई परेशानी है, कोई मजबूरी है, अल्लाह से कुछ मांगना चाहते हैं, दुनिया और आखिरत की भलाइयां चाहते हैं, तो अल्लाह से असर की नमाज के बाद से दुआओं में मशगूल हो जाइए। यकीनन आप वो घड़ी पाएंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी दुआ को कबूल करेगा। और ये अल्लाह का सबसे बड़ा इनाम है उन लोगों के लिए जो जुमा के दिन की अज़मत को जानते हैं। और जुमा के दिन एक बेहतरीन अमल जो किया जाता है वो अल्लाह के कलाम की तिलावत है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला बंदों के लिए पसंद करता है कि जुमा के दिन वो सूरतुल कहफ की तिलावत करे। सूरतुल कहफ बहुत अजीम सूरत है, इतनी अजीम सूरत है कि दुनिया का सबसे बड़ा फितना दज्जाल, इसको बर्बाद करने के लिए ये सूरत काफी है। प्यारे नबी ने फरमाया, जब दुनिया में दज्जाल आएगा और एक मोमिन सूरतुल कहफ की इब्तिदाई 10 आयतें पढ़कर उसके मुंह पे थूकेगा तो वो कभी उसके फितने का शिकार नहीं हो सकता। इतनी बड़ी सूरत है। हर जुमा के दिन बंदों को सूरह कहफ का एहतमाम करना चाहिए। बिल्कुल आधे से पौन घंटे का वक्त लगेगा, हमें सूरतुल कहफ की तिलावत हर जुमा पढ़नी चाहिए, करनी चाहिए। एक बेहतरीन अमल है, मुझको और आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह ताला कहता है फंतशिरू फिल अर्ज़। अब देखिए, जुमा के दिन जुमा की अज़ान हुई, नमाज खत्म हुई, हमने दुआ की, घर चले गए। अब अल्लाह कहता है जुमा की नमाज के बाद क्या करना है। जुमा की नमाज के बाद क्या करना है? अल्लाह कहता है फइज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्ज़। जब नमाज को मुकम्मल कर लो, नमाज पढ़ लो, तो अल्लाह की जमीन में ठहर जाओ और अपने कारोबार में चले जाओ। अल्लाह ने मना नहीं किया, इबादत का वक्त हो आपने इबादत की। अब इबादत के बाद क्या करना है? अल्लाह की जमीन में घूमना है, अल्लाह की निशानियों को देखना है और अपने कारोबार में लगना है। अपना जो बिजनेस है उसको फिर शुरू करना है, कमाना है। अल्लाह क्या कहता है, अगर तुम नमाज पढ़ोगे फिर कारोबार करोगे तो नमाज की बरकत से अल्लाह ताला तुम्हारे जो है कारोबार में बरकत अता फरमाएगा। यकीनन अल्लाह अपने वादे में बड़ा सच्चा है। मिन फज़लिल्लाह, और अल्लाह का फजल तलाश करो नमाजों के जरिए, यकीनन तुम कामयाब हो जाओगे। वज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। जुमा के दिन कसरत से अल्लाह का जिक्र करते रहो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। कामयाबी का ज़ामिन है कि मैं और आप अल्लाह का जिक्र करते रहे। ये चंद बातें थी जुमा के मुतालिक जो मैंने मुख्तसर वक्त में आपके सामने रखी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तमाम कही हुई बातों पर दिल की खुशी के साथ अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें जुमा की बरकतें हासिल करने वाला बना। अल्लाह ताला जो कोताहियां अब तक हमसे हो चुकी है, तो रहमान है, तेरे नामों का वास्ता, तेरे मीठे मीठे अच्छे अच्छे नामों का वास्ता या रब्बी हमारे उन तमाम लफ्ज़ों खताओं को माफ फरमा। अल्लाह हम तेरे गुनहगार सियाहकार खताकार बंदे हैं, हमसे दिन के उजाले में रात के अंधेरे में जाने अनजाने में बहुत गुनाह हुए, लेकिन तेरी रहमत से अल्लाह हम कभी मायूस नहीं। तो रहमान है, तेरी हजारों रहमतों का वास्ता या रब्बी हम पर रहम फरमा, हमारे गुनाहों को माफ फरमा। अल्लाह जो बीमार है उन्हें शिफाए कामिला आजिला नसीब फरमा। अल्लाह जो परेशान है उनके परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह जो दवाखानों में मरीज हैं, बीमार है, अल्लाह तो उनको सेहतयाबी नसीब फरमा, अच्छी जिंदगी नसीब फरमा। अल्लाह जब तक हम जिंदा रहे सहाबा इकराम के प्यारे मनहज पर जिंदा रखना, जब हमारा खातिमा हो तो खातिमा बिल खैर अता फरमाए। आमीन व आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हुदा हुदा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। काबिल एहतराम बुजुर्गों, ख़वातीन, जुमा के दिन जहाँ इंसान बहुत सारे काम करता है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और कसरत से यह अमल जुमा के दिन आपकी जिंदगी में पाया गया कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जुमा के दिन सदका करने का हुक्म दिया, सदका करने का हुक्म दिया। इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह कहते हैं, जिस तरह बंदा साल भर में रमजान के महीने में कसरत से सदका करता है, उसी तरह हफ्ते के 7 दिनों में जुमा के दिन अल्लाह की राह में अपना पैसा खर्च करे। ये उसके लिए यकीन माने बहुत बेहतरीन चीज है। सदका अल्लाह के गुस्से को ठंडा करता है और क़यामत के दिन अल्लाह ताला कुछ लोगों को अपने अर्श के साए में जगा देगा। उन लोगों में से किस्म के वो लोग होंगे जो दुनिया में अल्लाह के लिए अपने पैसों को खर्च करते थे। सदका करने की, खर्च करने की बहुत सारी सूरतें मौजूद है। हलाल रास्तों में हलाल पैसों से अल्लाह के लिए सदका करें, अल्लाह के घरों को ताउन करें, अल्लाह ताला के जो है हुजूर गरीबों की मदद करें, बेवाओं का सहारा बने, उनकी तमाम जो है परेशानियों को दूर करें। यकीनन ये मोमिन के लिए भलाई और खैर की बात है। इसी के ज़िम्न में एक बात आपके सामने अर्ज ये थी कि मस्जिद हाजा
جو آپ کے سامنے اپیل کی گزارش کرتا ہے، آپ تمام سے جمعہ کی برکت کی نیت سے اللہ سے ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ آپ جاتے ہوئے بعد نماز اس مسجد کے لیے خصوصی تعاون کرتے ہوئے جائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کے تعاون کو قبول فرمائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔